بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ سب کو ہماری آج کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ کووڈ-19 نے جہاں زندگی کے ہر شعبے سے وابستہ شخص کو متاثر کیا ہے، وہیں ہمارا شعبہ تعلیم بھی اس سے بری طرح جمود کا شکار ہو چکا ہے۔ سکولز اور کالجز بند پڑے ہیں اور تعلیم کا پہیہ جام ہو چکا ہے۔ موجودہ حالات کے پیش نظر حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ ملک کے تمام تعلیمی بورڈز کے ایگزامز جو ہو رہے تھے یا ہونے والے تھے، سب کو منسوخ کر دیا جائے۔ دوستو، یہ فیصلہ کس حد تک درست یا غلط ثابت ہوگا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے، لیکن اس فیصلے کے بعد ہمارے اسکول اور کالجز کے بہت سے اسٹوڈنٹس شدید الجھن کا شکار نظر آ رہے ہیں، بالخصوص وہ اسٹوڈنٹس جو بڑے زور و شور سے محنت کر رہے تھے۔ ان کے ذہن میں اس وقت کئی ایک سوالات جنم لے رہے ہیں۔ دوستو، ہماری آج کی ویڈیو بالخصوص انہی اسٹوڈنٹس یعنی میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کلپ کو دیکھنے کے بعد آپ کو اپنے سب کوسچنس کا، ساری کنفیوژنس کا حل مل جائے گا۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ کیا امتحانات واقعی منسوخ ہو چکے ہیں؟ کیا یہ دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ تو بیٹا، سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو حکومت پاکستان اور آپ کے تعلیمی بورڈز نے ڈیسیژن لیا کہ آپ کے ایگزامز کو منسوخ کینسل کر دیا جائے، تو اس ڈیسیژن میں چینجنگ اور تبدیلی کے امکانات بہت ہی کم یا نہ ہونے کے برابر دکھائی دے رہے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ میں سے کوئی اسٹوڈنٹ یہ سوچ رہا ہے کہ آپ کے ایگزام کی ڈیٹ شیٹ اچانک سے اناؤنس کر دی جائے گی یا یہ فیصلہ جو منسوخ کرنے کا ہوا ہے اس میں کوئی چینجنگ ڈکلیئر کر دی جائے گی، تو اس کے چانسز بہت ہی کم ہیں۔ کون کون سے اسٹوڈنٹ کو پروموٹ کیا گیا ہے؟ یہ کوشچن بھی بہت سارے اسٹوڈنٹس کے ذہن میں اب بھی موجود ہے۔ تو اسٹوڈنٹس سن لیں کہ 9th اور فرسٹ ایئر کے ایسے اسٹوڈنٹس جو 2020 میں اپنے ایگزام کے لیے اپیئر ہوئے تھے، انہیں پروموٹ کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح 9th اور فرسٹ ایئر کے وہ اسٹوڈنٹس جو اپنا ایگزام کسی وجہ سے سپلیمنٹری یا امپرومنٹ کی وجہ سے ریپیٹ کر رہے تھے، انہیں بھی پروموٹ کر دیا گیا ہے۔ یہاں پہ ایک بڑی اہم بات آپ کو بتاتا چلوں کہ شروع میں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے یہ فیصلہ کیا جانے کا امکان تھا کہ 9th اور فرسٹ ایئر کے چونکہ ایگزام نہیں ہو رہے، تو نیکسٹ ایئر یعنی 10th کلاس کا جب یا سیکنڈ ایئر کا ایگزام ہوگا تو اس کے ساتھ 9th کا بھی ایگزام دوبارہ لیا جائے گا۔ لیکن خوش قسمتی سے آپ کا یہ ایگزام اب دوبارہ نہیں لیا جائے گا۔ نیکسٹ ایئر آپ کا صرف 10th اور سیکنڈ ایئر کا ہی ایگزام ہوگا۔ اب آتے ہیں ہم 10th اور سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس کی طرف کہ ان کا رزلٹ بورڈ کس طرح سے ایشو کرے گا۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ کا رزلٹ جب اناؤنس کیا جائے گا تو اس میں آپ کو 3% ایڈیشنل مارکس دیے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 9th یا فرسٹ ایئر میں جتنے مارکس حاصل کیے وہ تو ایڈ ہوں گے ہی ہوں گے، بلکہ اب آپ کے سیکنڈ ایئر میں اور 10th کلاس میں دوبارہ اتنے ہی مارکس کو ایڈ کیا جائے گا، اور پلس آپ کے جو اوبٹینڈ مارکس تھے ان کا 3% اضافی آپ کو دیا جائے گا۔ یہ فیصلہ اس بنیاد پہ کیا گیا کہ ہر سال ریزلٹس کی کیلکولیشن سے یہ بات پتہ چلی کہ 9th کے اور فرسٹ ایئر کے مقابلے میں 10th اور سیکنڈ ایئر کا رزلٹ اسٹوڈنٹس کا کافی حد تک امپروو ہو جاتا ہے، اور تقریباً ہر اسٹوڈنٹس کے کچھ نہ کچھ مارکس ایکسٹرا آ جاتے ہیں اپنے سیکنڈ ایئر میں یا 10th میں۔ تو اس وجہ سے 3% مارکس آپ کو اضافی دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ فارمولہ آپ کے سامنے اسکرین میں دکھا دیا گیا ہے۔ اب اس فارمولے کے مطابق فرض کریں کہ
9th क्लास के किसी स्टूडेंट के मार्क्स 450 आए, लास्ट ईयर उसने 450 मार्क्स को हासिल किया। अब उसके 10th में मार्क्स जब कैलकुलेट किए जाएंगे तो उसमें 450 मज़ीद ऐड किए जाएंगे और ये हो जाएंगे 900। अब आपको जो इजाफी 3% मार्क्स हैं उन्हें कैलकुलेट करने के लिए आप 450 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.03 के साथ, यानी 3% के साथ, तो ये 13.5 आ जाएगा। अब आप इनको भी ऐड करेंगे अपने मार्क्स में, तो अब आपके 913.5 के लगभग मार्क्स बनेंगे जो आपको 10th क्लास में दिए जाएंगे या सेकेंड ईयर में दिए जाएंगे। जी, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो है प्रैक्टिकल के हवाले से कि क्या प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम लिया जाएगा या नहीं। तो सबसे पहले तो इस बात का जवाब सुन लें कि नहीं, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम अब आपका नहीं लिया जाएगा और ना ही लिया जा सकता है। दूसरी चीज़, अगर प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम नहीं हो रहा तो फिर उसके मार्क्स क्या मिलेंगे या नहीं, तो इसका जवाब ये है कि मार्क्स ज़रूर मिलेंगे आपको, और उसकी पॉलिसी क्या होगी वो हम आपको समझाते हैं। तो बेटा, सबसे पहली बात ये कि आपको अपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का जो 50% क्रेडिट है वो हर सूरत दिया जाएगा, हर स्टूडेंट को दिया जाएगा, ख्वाह वो किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स लेने वाला है या ज़्यादा लेने वाला है। 50% मार्क्स हर स्टूडेंट के आएंगे। मिसाल के तौर पे हम एग्जांपल ले लेते हैं फ़िज़िक्स के सब्जेक्ट की, 9th क्लास की फ़िज़िक्स की एग्जांपल हम ले रहे हैं, और इसी एग्जांपल को यूज़ करके आप केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर एंड इसी तरह फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट भी अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि उनके प्रैक्टिकल में मार्क्स कितने आएंगे। जी, तरीका ये है कि सबसे पहले आपको 50%, जैसे 9th क्लास की फ़िज़िक्स है उसके टोटल मार्क्स होते हैं प्रैक्टिकल के 20। अब आपको 10 मार्क्स उसके पक्के मिलेंगे ही मिलेंगे, हर सूरत वो क्रेडिट आपको दिया जाएगा। अब बकिया 10 मार्क्स का जो ताल्लुक़ है वो आपके 9th क्लास के मार्क्स पे डिपेंड करता है कि आपने 9th क्लास में फ़िज़िक्स के सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लिए थे। लेट्स सपोज कि एक स्टूडेंट ने 9th क्लास की फ़िज़िक्स में 52 मार्क्स लिए 65 में से, ठीक है। अब हमने ऐसे करना है कि उन मार्क्स को डिवाइड करना है, यानी 52 को 65 के साथ डिवाइड करना है और 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये फार्मूला दिया गया है आपकी स्क्रीन पे, आप इसको देख सकते हैं। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको 8 फिगर नज़र आएगा। अब आप उसको 10 में ऐड करेंगे तो 18 मार्क्स बन जाएंगे। ये वो मार्क्स हैं जो आपको दिए जाएंगे आपके रिज़ल्ट में प्रैक्टिकल के लिए, ठीक है। यानी 20 में से आपको 18 मार्क्स दिए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब आप अपने अपने मार्क्स जो कि अदर सब्जेक्ट्स में हैं या फ़िज़िक्स में हैं, आप उनको खुद से चेक कर सकते हैं और ये आइडिया लगा सकते हैं कि आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स कितने दिए जाएंगे। अब हम आते हैं उन स्टूडेंट्स की तरफ जो अपने एग्ज़ाम में अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए एडमिट हुए थे, यानी उन्होंने अपने तमाम सब्जेक्ट्स को या कुछ सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव करना था, वो अपने गुज़िश्ता रिज़ल्ट से सेटिस्फाइड नहीं थे। तो इनके लिए कुछ कैटेगरीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिनमें सबसे पहली कैटेगरी है जिसमें पार्ट 2 के स्टूडेंट्स लाइक करते हैं। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो अपने पार्ट 2 के फुल सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव करना चाह रहे थे। पार्ट 2 से मुराद 10th क्लास के स्टूडेंट्स या सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। पार्ट 2 के स्टूडेंट्स जब इम्प्रूवमेंट करते हैं तो उसकी वजह ये होती है कि उनके पार्ट 1 में मार्क्स ज़्यादा थे, जबकि पार्ट 2 के उनके मार्क्स कम आए बदकिस्मती से। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये फ़ैसला किया गया है कि उनको पार्ट 1 के ही इक्विवेलेंट मार्क्स दे दिए जाएं, यानी जिस पार्ट में ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक स्टूडेंट ने 9th क्लास में 480 मार्क्स गेन किए लेकिन 10th क्लास में उसके मार्क्स 430 आए,
अब उसको डेफिनेटली अपना जो पार्ट 2 था उसको इम्प्रूव करना था, लेकिन अब वो इम्प्रूव नहीं कर पाया क्योंकि एग्ज़ाम मनसूख हो गए। तो अब उसको 480 ही मार्क्स पार्ट 2 में भी दे दिए जाएंगे। अब उसके मार्क्स 480 + 480 हो जाएंगे। फार्मूला आपके सामने है जिसमें लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पार्ट 1। 2 इसलिए मल्टीप्लाई किया है कि दोनों के इक्वलेंट मार्क्स ऐड हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये बात बताता चलूँ कि प्रैक्टिकल के मार्क्स आपके चेंज नहीं किए जाएंगे, उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली का इम्कान नहीं है। वो आपके मार्क्स गुज़िश्ता एग्ज़ाम में जितने भी आए, कम या ज़्यादा, वो आपको उतने ही दिए जाएंगे। इसी तरह कैटेगरी 2 में वो स्टूडेंट्स लाई करते हैं जो अपना पार्ट 1 का एग्ज़ाम विद फुल सब्जेक्ट्स इम्प्रूव करने जा रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से एग्ज़ाम्स की कैंसिलेशन की वजह से वो उसको इम्प्रूव नहीं कर पाए। तो ऐसे स्टूडेंट के साथ भी वही फार्मूला यूज़ किया गया है जो कैटेगरी 1 के स्टूडेंट के साथ यूज़ किया गया था। यानी आपके अगर पार्ट 2 में मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, पार्ट 1 में कम आए थे, इसीलिए आप उसको इम्प्रूव कर रहे थे, तो अब आपको पार्ट 1 में भी उतने ही मार्क्स दे दिए जाएंगे जितने आपने पार्ट 2 में हासिल किए थे। यानी ज़्यादा वाले मार्क्स आपको दे दिए जाएंगे और कम वाले उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसके लिए भी फार्मूला सेम ही है कि 2 मल्टीप्लाई बाय मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पार्ट 2। ठीक है, ये पार्ट 2 में जितने मार्क्स आपने लिए थे उसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी दोनों सेम टू सेम ऐड हो गए। एंड प्रैक्टिकल की पॉलिसी यहाँ पे भी वही है कि प्रैक्टिकल में किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं की जाए। अब हम बात करते हैं कैटेगरी 3 में, जिसमें वो स्टूडेंट्स आते हैं जो अपने कुछ सब्जेक्ट्स को, 1 या 2 सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव करना चाह रहे थे। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट्स के साथ भी वही पॉलिसी यूज़ की गई है कि जिसमें उनको उस सब्जेक्ट्स के मार्क्स दिए जाएंगे जिसमें उनके मार्क्स ज़्यादा आए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक स्टूडेंट 9th क्लास की यानी पार्ट 1 की फ़िज़िक्स के सब्जेक्ट को इम्प्रूव करना चाह रहा है क्योंकि उसमें उसके मार्क्स कम आए थे, जबकि 10th की फ़िज़िक्स में उनके मार्क्स ज़्यादा आए थे, तो अब उनको 9th की फ़िज़िक्स में भी 10th के मार्क्स के इक्वल मार्क्स दे दिए जाएंगे, यानी कि जिसमें ज़्यादा मार्क्स होंगे। इसी तरह अगर आप 10th की फ़िज़िक्स को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, 9th में ज़्यादा मार्क्स लिए थे, तो फिर आपको उसमें भी 9th के इक्विवेलेंट मार्क्स दे दिए जाएंगे। तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनमें कैटेगरी 3 अप्लाई होती है, और इसमें भी प्रैक्टिकल के मार्क्स जो हैं उनको सेम टू सेम रखा जाएगा। कैटेगरी 4 में वो स्टूडेंट्स हैं जो अपना पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही इम्प्रूव करना चाह रहे थे। अब ऐसे स्टूडेंट्स को गुज़िश्ता पॉलिसी के मुताबिक तो मार्क्स नहीं दिए जा सकते, लिहाजा ऐसे स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल एग्ज़ाम के तौर पे एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाने का इम्कान है, जो कि अगस्त या सितंबर में लेने का फ़ैसला किया गया है। कैटेगरी 5 में हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो कि 9th क्लास का कोई सब्जेक्ट या फर्स्ट ईयर का कोई सब्जेक्ट अभी 10th क्लास के एग्ज़ाम के साथ दोबारा देना चाह रहे थे फॉर द सेक ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो ऐसे स्टूडेंट का क्या होगा? तो स्टूडेंट्स ऐसे जो इम्प्रूवर्स हैं जिनका इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम होने से पहले ही ऑल एग्ज़ाम्स कैंसिल होने की अनाउंसमेंट कर दी गई थी, ऐसे स्टूडेंट की ऑलरेडी चूँकि 10th क्लास के साथ 3% एडिशन कर दी गई है, लिहाजा उसी को इम्प्रूवमेंट के ज़ुमरे में कंसीडर किया जाएगा, तो वही आपकी इम्प्रूवमेंट समझी जाएगी। उन स्टूडेंट्स का क्या होगा जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दे रहे थे, यानी किसी सब्जेक्ट में एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में उनकी कंपार्टमेंट आ चुकी थी, तो उन स्टूडेंट का रिज़ल्ट किस तरह कंपाइल किया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए। ऐसे स्टूडेंट को सबसे पहली बात तो ये कि पास कर दिया गया है, उनको अपने उन सब्जेक्ट्स में भी पास कर दिया गया है जिनमें उनकी कंपार्टमेंट थी। बट व्हाट अबाउट मार्क्स? उनके मार्क्स किस तरह से आएंगे?
मार्क्स के लिए स्क्रीन पे एक फार्मूला आपको दिखाया गया है, जिसके मुताबिक आप सबसे पहले अपने उन सब्जेक्ट्स के मार्क्स को, ऑब्टेन मार्क्स को ऐड करें जिनमें आप पास थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री में कंपार्टमेंट ले चुके हैं लेकिन बाकी तमाम सब्जेक्ट्स में आप पास हैं, तो आप उन पास सब्जेक्ट्स के मार्क्स को जो आपने ऑब्टेन किए उनको ऐड करें, फिर उनके टोटल मार्क्स को भी ऐड कर लें, दोनों का सम ले लें। अब आप उन दोनों को डिवाइड करें और 100 से मल्टीप्लाई करें, यानी उनकी परसेंटेज देखें कितनी आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी वो परसेंटेज आ जाती है 50%। अब आपके जो सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम थे जो आप देने जा रहे थे बट वो हो नहीं सके, तो अब आपके उनके मार्क्स भी 50% ही लगा दिए जाएंगे, कंसीडर कर दिए जाएंगे, क्योंकि आपने गुज़िश्ता जो एग्ज़ाम पास किया था उसमें आपके 50% मार्क्स बन रहे थे। लिहाजा उसी को देखते हुए, उसी की बुनियाद पे, परफॉर्मेंस पे आपके सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स के भी मार्क्स लगा दिए जाएंगे। अगर आपके उन पास्ट एग्ज़ाम में 70% मार्क्स बनते हैं तो फिर आप ये समझें कि आपके सप्ली वाले सब्जेक्ट में भी 70% मार्क्स ऐड कर दिए जाएंगे। ठीक है। अब सप्लीमेंट्री अगर किसी की सिर्फ 10th क्लास में थी तो उसके लिए भी सेम पॉलिसी है, किसी की सिर्फ 9th क्लास में थी उसके लिए भी सेम पॉलिसी है, किसी की अगर दोनों में थी, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, 9th में, 10th में या दोनों में, फुल सेशन में, तो उन सब के लिए सेम टू सेम पॉलिसी इस्तेमाल की जाएगी। अब हम बात करते हैं सबसे आखिरी एक कन्फ्यूजन की कि किन बच्चों का स्पेशल एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, इनमें वो वाले स्टूडेंट लाई करते हैं जो कि कंबाइन एग्ज़ाम दे रहे थे, यानी 9th और 10th का कंपोजिट एग्ज़ाम देने जा रहे थे या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का कंपोजिट एग्ज़ाम देने जा रहे थे, उनके लिए स्पेशल एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। इसी तरह कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि एडिशनल पेपर 1 या 2 सब्जेक्ट का देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट मेडिकल का था तो उसने इंजीनियरिंग में शिफ्ट होना था, तो वो अपनी बायो की जगह पे मैथ का एडिशनल पेपर देगा, तो ऐसे स्टूडेंट का भी स्पेशल एग्ज़ाम लिया जाएगा। अब ये एग्ज़ाम कब होगा, तो इसके लिए कबल अज़ वक्त कुछ कंफर्म कहना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बोर्ड जब अनाउंस करेगा, लेकिन फ़िलहाल हम अगर चांसेस की बात करें तो वो सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में लिए जाने के चांसेस हैं। अब स्पेशल एग्ज़ाम की कैटेगरी में वो स्टूडेंट भी शामिल हैं जिनको गुज़िश्ता मैंने आपको इस पूरी वीडियो में जितनी भी पॉलिसीज़ बताई, अगर आप में से किसी स्टूडेंट को उन पे कोई एतराज़ है, अभी भी आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो ऐसे स्टूडेंट को भी चाहिए कि वो भी बोर्ड को प्रॉपर चैनल के ज़रिए से उनको इन्फॉर्म करें और अपने लिए अपने स्पेशल एग्ज़ाम को सिलेक्ट कर लें। ठीक है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात कि जिन बच्चों का दोबारा एग्ज़ाम लिया जाएगा तो उनके लिए उनको ना एडमिशन फ़ीस दोबारा पे करने की ज़रूरत होगी और ना ही एडमिशन फॉर्म को दोबारा सेंड करने की ज़रूरत होगी। ये सारा प्रोसीजर आपका वही रिस्टोर हो जाएगा जो पहले आप कर चुके हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो देर ना कीजिए, फ़ौरन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर भी करना मत भूलिएगा, ताकि तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को जल्द अज जल्द ये इन्फॉर्मेशन मिल सके और उनको अपने सवालात का जवाब मिल सके। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।